ashram every Monday after the mantra. If you want to participate in the readings, please contact me. Last week we read chapter 13 of the Videshvara Samhita. In this we read that sages requested Suji to enlighten them about the evil acts as well as the virtuous acts that lead to the attainment of heaven or hell. They also requested him to explain about the good conduct that can lead to the attainment of higher worlds. Suji told that there are 4 castes, namely Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, and gave a detailed description of the kind of work they do in the society. They said that every person belonging to these castes should get up early in the morning and should sit facing east and then meditate on gods, think of the virtuous acts that they need to do, and at the same time they should think about their monetary dealings, their income, their expenditure, and issues that are coming with the same. They said a good Brahmin should wake up in the Ushakal, which is the last 3 hours of the night, and answer the nature's call. He described the correct way by which he should answer the nature's call and clean his teeth, take a bath, and wash his clothes. He stressed on the importance of mantra snan with mantras like Ahuhishta and Yashashrayai that can be used in case a person is unable to take bath in certain specific situations. He also gave the correct method of how we should give argha to sun in the morning, in the midday and in the evening. He stressed on the importance of mantras, saying that all good Brahmins should get up early in the morning and pay obeisance to all the gods and then recite Gayatri mantra about 1,000 times in the morning, about 100 times in the midday and 28 times in the evening, and follow it by Pranav mantra, which is nothing but the Om mantra, dwelling on its meaning, and this should be done every single day without any omissions or deficiencies. And this should be the ritual throughout life till the Brahmin reaches 70th year of his life, after which he should take sannyasa and then he should recite the Pranav mantra 12,000 times every morning. For the other castes, he said that they can recite the mantra any number of times that is suitable, but they should do it. And regarding how one should earn wealth, he said that every person should try to earn wealth by a virtuous way and a pure and lawful way, and then enjoy this wealth, which will lead to detachment, because he says that if a person earns wealth by non-virtuous ways, it would lead to increase of passion and ultimately send him to hell. He said that every person should donate in his or her capacity and should never deny donation that he can make as per his capacity. He said that he should also utilize his wealth to the best of his ability. He described it that the wealth that he earns should be divided into 3 equal parts, one for dharma, another for vriddhi, and third for bhoga. That one that is meant for dharma should be used for doing the acts of worship, sometimes occasional deeds of piety, and sometimes some sacred rituals which are specific for fulfillment of desires. With the one meant for vriddhi, as the name suggests, it should be used for increasing of wealth, and the third one was bhoga. This was meant for enjoyment, but in a restrained manner, in a pure and virtuous way. He said that one should never use harsh words and never try to hurt other people. At last he concluded that if a person does good deeds, then it leads to happiness, and if he does bad deeds, then it leads to misery. Today we'll be reading chapter 14, which is a description of fire sacrifices, and chapter 15, which is the qualification, time and place of the Yajna. Kaveri auntie will be reading in Hindi and Shweta auntie will be reading in English. Jai Mujab maaf during the read. Apologize for any mispronunciation. Chapter 14. The sages said, O Lord, please tell us in order, in detail, all these rites, viz. the fire sacrifice, the sacrifice to gods, Brahma Yajna, the worship of the preceptor, and the gratification of Brahmins. Suta said,
The offering made into the fire is called fire sacrifice, Agni Yajna. In case of persons in the Brahmacharya Rama, that is religious student, it is called Sami Dhana, collection of sacrificial twigs. O Brahmins, under the rite of Upasana, fire sacrifice of the householder, all the persons in the first ashrama perform their vratas and special sacrifices in the fire from sacrificial twigs. O Brahmins, in the case of ascetics and forest dwellers who have consigned the sacred fire to the Atma, taking a restricted quantity of wholesome food is itself the sacrificial offering. Householders who have started their upasana rite shall maintain the rite in the sacrificial fire, kept in a vessel or pit always. The sacrificial fire shall be maintained either in the Atma or in the Arani, the sacrificial churning twig from fire which is kindled, lest the fire should be extinguished by royal or divine intercession. O Brahmins, the offering in the fire in the evening for the fire gods is the bestower of prosperity. The offering in the morning for the sun god is conducive to longevity. This is called Agni Yajna, inasmuch as it enters the sun during the day. The different sacrifices, Sthalipaka, etc., for propitiation of Indra and other gods by offering in the fire are called Deva Yajna. The rites of Chola, ceremony of tonsure, etc., are performed in the ordinary fire. The regular study of the Vedas is called Brahma Yajna. A Brahmin shall perform this constantly for the propitiation of gods. This is to be practiced by all, and hence no special rules are prescribed here. Now attend to the explanation of certain Deva Yajna without fire. At the beginning of the first creation, the omniscient, merciful Lord Mahadeva created the different weekdays for the benefit of the entire world. Lord Mahadeva, the global physician, the omniscient, the Panchya, or of all Panchas, made the first day his own day that bestows good health. Next, he created the day of his Maya, illusion, the bestower of prosperity. Afterwards, when the birth of Kumara was attended with some mishaps, he created the day for the sake of surmounting mishaps and idleness. With the desire to bless the world and for their nurture and protection, he created the next day dedicated to Vishnu, the protector of the worlds. The next day created by the Lord is for the sake of the longevity of the worlds, dedicated to the creator of the three worlds, Brahma, called also Paramesthin, who is the bestower of longevity too. Hence this day too bestows longevity. The last 2 days of the week created by the Lord are those of Indra and Yama. In the beginning, when the Lord created Punya and Papa, virtue and sin, for making the three worlds flourish, these deities who preside over them were assigned these 2 days. The last 2 days are the bestowers of worldly enjoyment and removers of premature death respectively. The Lord made the sun, etc., who are his own manifestation and are firmly established in the solar cycle. Jyoti Chakra, the lords of different days, their worship in their respective days accord the respective benefits, viz. Health, riches, removal of sickness, nourishment, longevity, enjoyment of pleasures, and prevention of death respectively. It is said that the respective merits of the different days are secured through the gratification of the gods. Shiva is the ultimate bestower of the fruits accruing from the worship of other gods as well. The worship for the propitiation of the deities is fivefold. 1. The repeated recitation of the respective mantras. 2. Sacrifice. 3. Charitable gift. 4. Austerities. And 5. Propitiation on the altar. Idol, fire, or a Brahmin. The 16 forms of service and homage shall be duly observed. Of the fivefold forms of worship, the latter are more efficacious than the former. In the absence of the earlier ones, the latter ones can be observed. In the ailments of the eyes or head or of quelling leprosy, the sun shall be worshipped, and the Brahmins fed for a day, a month, a year, for 3 years. If the action meritorious or otherwise that has begun to fructify is sufficiently strong, the ailment, the old age, etc. are alleviated. The repetition of the mantras of the favorite deity accords to the respective benefit of the day
of the week. The first day of the week, dedicated to the sun, has the special merit of the removal of sins, especially for Brahmins. For the sake of riches, the intelligent devotee shall worship Lakshmi, etc. on Monday with cooked rice, soaked in ghee, and shall feed Brahmin couples. For alleviating ailments, the devotee shall worship Kali and others on Tuesday. He shall feed Brahmins with an adaka, it's a measure of cooked rice, the pearls, black gram and green gram. The scholarly devotee shall worship Vishnu with curd rice on Wednesday. Sons, friends, women folk, etc. will always be well nourished forever. A person who seeks longevity shall worship the deities for the gratification with sacred thread, cloth, milk and ghee on Thursday. On Friday, for the sake of enjoyment of worldly pleasures, the devotee shall worship devas with concentration. Brahmins should be propitiated with the cooked food consisting of 6 flavors. Good cloth should be presented to women to gladden them. The wise devotee shall worship Rudra and others on Saturday, that wards off premature death, by performing Homa with gingerly seeds. He shall make gifts to the Brahmins and feed them with cooked rice and gingerly seeds. Thus, worshipping the deities, he shall derive the fruit of good health, etc. In the daily or special sacrifices of the deities, ceremonial ablutions, charitable gifts, repeated muttering of mantras, sacrifices, propitiation of the Brahmins, in the worship of the different devas in view of special dates or special conjunction of the planets, or in the different days of the week, it is the omniscient Lord of the universe who bestows health and other benefits by assuming the different forms. He bestows the same according to the time, place, and the desert of the recipient. The articles for worship shall be in accordance with one's faith or local conventions. The Lord bestows health, etc., in accordance with the comparative quality of the same. In the beginning of the period of auspiciousness to the end of the period of inauspiciousness, on birthdays, according to the stars, etc., the householder shall worship the planets, sun, etc., in his own house for his good health, etc. Hence, the worship of gods bestows all desired fruits. The worship conducted by Brahmins must be along with mantras and by means of gesticulations in case of others. The worship shall be carried out by men seeking good benefits in all 7 days in accordance with their capacity. Indigent men shall worship devas with austerities, and rich men by spending money. Again and again they shall do virtuous actions with sufficient faith. After enjoying the pleasures in heaven, they are reborn again in the world. For better enjoyment, the rich shall always plant trees for shade, dig tanks, etc., install deities, and carry on virtuous activities. After the lapse of some time, when the virtue becomes ripe, he shall achieve perfect knowledge. O Brahmins, he who hears this chapter or reads it, or he who facilitates the hearing of the same, shall derive the fruit of Deva Yajna. This concludes chapter 14. Chapter 15. Description of the qualification, time and place of Deva Yajna, etc. The sages said, O Sutta, foremost among those who know everything, please expound to us and place, etc. Sutta said, the pure house accords normal benefit in the rites of Deva Yajna, etc. The cowshed is often of 10 times more benefit than that. The bank of a tank is of 10 times more benefit than that. And the root of tulsi plant or of bilva or aswatha trees is again of 10 times more benefit than that. Similarly, a temple, a bank of a holy tank, the bank of an ordinary river, the bank of a holy river, and the banks of the 7 holy Gangas are each of 10 times more benefit than the previous. The 7 holy Gangas are Ganga, Godavari, Kaveri, Tamrapurnika, Sindhu, Sarayu, and Riva. The shores of the sea are of 10 times more benefit than the previous. The summit of a mountain is of 10 times more benefit than the shore of the sea. The place where the mind is quite at home is the most excellent of all places. Yajna, Dana, etc. accord full benefit of the Krita age. In the Trita age, they yield 3/4 of the benefit. In the age of Dwapara, the benefit derived is half. In the age of Kali, only 1/4 of the benefit is obtained. When half of the Kali age passes on, the benefit is only 3/4 of this 1/4. A holy day accords a normal benefit to a pure soul devotee.
O scholars, the period of transit of the sun from one zodiac to another yields 10 times more benefit than that. The period of equinoxes, the period of tropical transit, the period of transit to the Capricornus, and the time of lunar eclipse are each of 10 times more benefit than that of previous one. The auspicious hour of complete solar eclipse of still is more benefit than the previous. Since the sun of cosmic form is infested with poison, then there is the likelihood of ailment spreading. Hence, for the alleviation of the serious effects of poison, the devotee shall observe ceremonial ablutions, offer gifts, and mutter prayers. That period is especially holy, inasmuch as it is intended for the alleviation of the after effects of poison. The birth star and the concluding period of holy rites are of the same efficacy as the period of solar eclipse. The time spent in the company of noble holy men is of the efficacy of crores of solar eclipses. Persons of unflinching devotion to austerities and perfect knowledge, yogins and ascetics, deserve holy worship since they quell other sins. A Brahmin who has repeated the Gayatri Mantra 2,400,000 times also deserves the same and accords full benefit and worldly enjoyments. The word Patra, one who deserves, means one who protects the giver from downfall. The word Gayatri means that which saves the reciter from downfall. Only a person of purified soul can save others, just as only a rich man can donate anything to others. A man of no means cannot give anything to others in this world. Only he who has purified himself by means of Gayatri Japa can be called a pure Brahmin. He alone deserves the position of presiding over all holy rites. Dana, Japa, Homa, Puja, etc. He alone can save others. Any hungry man or woman deserves charitable gifts of cooked food. An excellent Brahmin must be invited on an auspicious occasion and given sufficient sums of money with piety and pleasing words. They accord all desired results. A charitable gift given to a needy person yields the utmost benefit. If it is given after entreaties, it yields only half the benefit. Monetary gifts to servants accord only 1/4 benefit. O excellent Brahmins, charitable gift to an indigent person only because he is born a Brahmin accord worldly enjoyment for 10 years. Gifts to Brahmin Vedic scholars accord heavenly enjoyment for 10 years. Gifts to Brahmin who regularly repeats Gayatri Mantra accord Satyaloka for 10 years. Gifts to Brahmin devotee of Vishnu accord Vaikuntha Loka. Gifts to Brahmin devotee of Shiva accord Kailasha. All kind of gifts accord enjoyment in the different lokas. A person who gives cooked food attended with the 10 ancillary services on a Sunday attains good health for 10 years even in the next birth. The 10 ancillary services are honoring, inviting, providing oil bath, washing and serving the feet, bestowing cloth, stands, etc., serving side dishes of 6 days, pancake prepared in ghee and sweet juices, betel leaves, monetary gifts, formal farewell, and following a few steps. This is called Dasanga Annadana. A man who renders 10 sorts of ancillary services to 10 Brahmins on Sunday attains good health for 100 years. If he gives the same on Monday or any other day, he attains the benefit as stipulated for that day. The benefit of food gifts is secured in this world either in the birth or in the next. If in this manner he gives food on all of the 7 days to 10 Brahmins, he secures good health and all other benefits for 100 years. Similarly, he who gives cooked rice in this manner to 100 Brahmins on Sunday secures good health in Shivaloka for 1,000 years. If he gives the same for 1,000 Brahmins, he secures the benefit for 10,000 years. Similarly, the benefit accrued for gifts on Monday and other days can be understood by a thoughtful man. By giving food to 1,000 Brahmins whose minds have been purified by Gayatri on Sunday, the devotee attains good health and other benefits in Satyaloka. By giving food to 10,000 persons, he secures the benefit in Vishnu Loka. By giving it to 100,000 persons, he derives benefit in Rudra Loka.
Those who seek learning must make gifts to children, considering them on a par with Brahma. Those who seek sons and others' ends must make gifts to young men, considering them on a par with Vishnu. Those who seek knowledge must make gifts to old men, considering them on a par with Rudra. Those who seek intellect must make gifts to young maidens, considering them on a par with Bharati, who is goddess of speech. Excellent men seeking enjoyment must make gifts to youthful maidens, considering them on a par with Lakshmi, goddess of wealth. Those who seek purity of Atma must make gifts to old women, considering them on a par with Parvati. That which is acquired by gleaming more than one ear of corn at a time, or gleaming cones one by one, by feast received from disciple, is called Sudadravya, clean wealth. This wealth yields complete benefit. Wealth acquired by acceptance of monetary gift is called middlesome wealth. Wealth acquired by agriculture or trading activities is called lowliest wealth. Wealth acquired by Kshatriya using their valor or Vaishya by trading activities is called excellent. So also the wealth acquired by the Shudras by salaries for service. Patrimony or sum received from husband's form, the wealth of virtuous woman. There are 12 things to be given in the 12 months beginning with Chaitra, or all together on an auspicious occasion for the flourishing of what is cherished. They are cow, plots of land, gingerly seeds, gold, ghee, cloth, food grains, jaggery, silver, salt, ashgard, and a virgin. Gift of cows, milk products, cow dung in the form of manure, etc. Ward off the sins accruing from wealth and grain, while sins connected with water, oil, etc. are warded off by cow's urine. The three kinds of sin, physical, etc. are warded off by milk, curd, and ghee. Their nourishment can be understood by scholars. Gift of plots of land is conducive to stability here and hereafter. O Brahmins, gift of gingerly seed is conducive to strength and to the conquest of premature death. Gift of gold increases the power of gastric fire and is conducive to virility. Gift of ghee is nourishing, and that of cloth is conducive to long life. Gift of food grain is conducive to the increase of food production. Gift of jaggery yields sweet food. Gift of silver is conducive to the increase in the quantity of semen, and that of salt is conducive to the happy admixture of the six tastes. The gift of pumpkin gourd is conducive to nourishment. All kinds of gifts increase everything and secure all kind of enjoyment here and hereafter. O Brahmins, gift of virgin is conducive to worldly enjoyment throughout life. Sensible person shall make gifts of fruits according to the season, such as fruits of jack, mango, wood, apple trees, plantains, fruit from the hedges, pulses of black gram, green gram, vegetables, chilies, mustards, their plants, etc. Sensible men shall gratify the sense organs of hearing, etc., of other people for the gratification through sound, etc. It gratifies the poorers too. Theism is that feeling in which one fully realizes that all actions are fruitful. It is necessary that Vedas and sacred texts should be learned direct from preceptors. Devotion to God out of fear from kinsman or royal punishment is of inferior sort. An intelligent person, bereft of all means of livelihoods, shall worship verbally or by means of physical activities. Verbal worship means reciting of mantras, hymns, and japas. Worship of physical activities means pilgrimages, observance of fasts, and other rites. Whatever one does, whether it is great or small, whatever be the means employed, if that is dedicated to deities, it becomes conducive to enjoyment. The true practice of austerities and making charitable gifts must be carried out always. Asylum should be given according to the caste of the person concerned. It is conducive to the satisfaction of the devas and worldly enjoyment as well. Such a devotee shall always attain noble birth and enjoyment here and hereafter. If he performs the sacred rites with dedication to God, he shall attain salvation. He who reads or hears this chapter becomes righteous and endowed with knowledge. Shukrana, Jai Guruji, Kaveri Aunty is going to read in Hindi now. जय गुरु जी। अध्याय 14
अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देवराग में से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमश वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधि का स्थित है, उन ब्रह्मचर्यों के लिए आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजुकों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपास नागिन की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। द्विजो, जिन्होंने 12 अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार ये अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तिक हवन कर्म हैं, उन्हें भी देव यज्ञ ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्व समर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य है, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों की भी औषध है। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गा तिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्व समर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने सृष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक रक्षता परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमश भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक है, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सबके सब ग्रह नक्षत्रों ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध है। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति है। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनैचर है। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली होती है।
सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों के निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैचर मृत्यु का निर्वाण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमश फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं को मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोगी के शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर एक दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। ईष्ट देव के नामन मंत्रों जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा संपत्ति में ब्राह्मणों को दृढ़ पक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की दृष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा धृति मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रित होकर देवताओं की पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनैचर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। शनैचर अपमृत्यु का निर्वाण करने वाला है। तिलक के होने से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग्य प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी ने आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ के आरंभ और अशुभ के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। शूद्र और दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति से अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृषादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय बनाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्याय प्रकार से
भी धन का संग्रह करता है। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो, जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अध्याय 14 समाप्त। देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों की ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमश देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फलों का सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सूर्य और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सत्य युग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। श्वेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कली युग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधी कली युग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंत करने वाले पुरुषों का शुद्ध एवं पवित्र दिन स्तंभ फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोत्तर शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उसका कर्म का है, जो विश्व नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विष्णु से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्राओं में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विशेष संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विश्व की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्रों में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पात्र करने से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायिका का पतन से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वह दूसरों को धन दे सकता है।
उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वह दूसरों मनुष्य को त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया वह शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवकों के दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दातकों को इसलिए भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेता ब्राह्मणों को दिया जाए तो वह सर्वलोकों में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमश दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कौड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिका, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इलोक और परलोक प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जट रागिन को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति करने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लव वर्ण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति करता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कृष्णामंड के दानों की पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोकों में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाला है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जिन वस्तुओं का श्रवण आदि इंद्रियों तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत आदि 10 इंद्रियों जो शब्द आदि 10 विषयों है उनका दान किया जाता है तो वो भोगों की प्राप्ति करते हैं तथा दिशा आदि इंद्रियों देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने वाले पश्चातार जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राज के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है, जो सर्वथा दरिद्र है। इसीलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतापर्ण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ है होने वाले भोग पाता है। ईश्वर राम पूर्ण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके
मनुष्य मोक्ष फल की भागी होता है। पृथ्वी आदि से निर्मित देवताओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य, विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों, फल, विशेष मास वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों का देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनाई हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करे और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर संस्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए तो हो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई है। तदनंतर उसे परमासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जंती फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक है। अब हनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कूप होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कूप और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सैर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभूलिंग के लिए 5 सेब। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्य लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा और जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 फुट के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यशा योग्य मात्रा रखी जाए तो उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल संपन्न करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं को लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यशेष भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती है। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्र पद्म मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पौष मास के शतभिक्षा नक्षत्र आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में
की हुई शिव आदि की पूजा आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझनी चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। समस्त काम नाके देने वाला, उनमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्राह्मण स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों कर्मों की आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्नाद के बाद तिथि का आरंभ होता है, तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्रद्धा आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाव ही दिन युक्त होता है, अतः वह देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्यम काल तक तिथि रहे, तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कर्म कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्रहण होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार की योजना की गई है। पूजा याते अने इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है, उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान, यह ही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परामर्थ की ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ है। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फल देता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों की फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति जी की पूजा एक पक्ष में पापों को नाश करने वाली होती है। एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की गई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है, और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त संपत्ति तिथि को तथा माघ शुक्ला संपत्ति को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्रेय की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोत्तर गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु जी की तृप्ति के लिए मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली होती है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाराद्रा का योग हो तो उस अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्टों को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्र का योग्य हो अथवा मार्ग
शीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उसे पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित हो और देवराग में तत्पर हो। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों को विनाश करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्य के महान द्रव्य मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों, साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री सकंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति करने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोगे पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्याओं को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों को वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धनवंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिपुट, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और संपूर्ण मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से सर्वलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में पुष्यकाल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमश समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करने वाला होता है। इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किए हुए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धन, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठा का फल, इलोक और परलोकों में महान भोग, अंत में सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उस काल से लेकर संवकाल तक ही पौष मास के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रियों और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्य काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पश्चांतर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का ही नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह ये जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वह सबका आधार है। आधार में ही अध्याय का समावेश अथवा लय होता है। यह सकली कारण है। इससे सकली कारण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उस जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव। इन दोनों का संयुक्त रूप से ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूप देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता की पूजित होने से परमान नदी की प्राप्ति ही हो जाती है। अतः परमान नंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंगों को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग पुरुष रूप है और भर्गा प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिनाश रूप को गर्भ को पुरुष कहते हैं और संयुक्त आंतरिक अधिनाश रूप गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्राकृतिक रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्वाधिक के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना चाहिए, यही उसी प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीविका का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, इसीलिए उसी जीव का संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिनाशभूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार करें। फिर गाय के दूध और अन्न के मैल से नैवेद्य तैयार करें। प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्व उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयं शंभुलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अध्र्या बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चल लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य है, उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 15 समाप्त। जय गुरु।